Okay, equation we have 2x to the power 4 right. This is not quadratic, but we know we can convert this into quadratic. So put x square is equal to t, and we know that t must be greater than equal to 0 because any x square value will be always greater than equal to 0. So the equation would be 2t square minus t plus a is equal to 0. Right? This is a quadratic in t where t must be greater than equal to 0. Right? What we required from first one, all the roots are real. If all the roots are real, obviously this will give the real value for t greater than equal to 0. So let's make the graph. For first case, when we are saying all the roots are real, so if it's a t-axis, right, ये इसके ग्राफ में बना रहा हूँ, right, and इसके corresponding जो होगा कैपिटल T मान देता हूँ. इसका ग्राफ अगर we have to draw, we know that if graph will intersect in the positive one, right, पॉजिटिव में ये कहीं भी कट कर रहा हो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो अगर ये कहीं भी कट कर रहा हो, जीरो पर हो, जीरो के आगे कहीं भी इस तरह से अगर मूव कर रहा हो, तो दिस विल बी 100%, राइट, दिस विल वर्क, राइट. सो व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट, दिस इज जीरो, राइट, बोथ द रूट्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉजिटिव, राइट, दोनों पॉजिटिव में कट करें. First condition, we know that d must be greater than equal to 0. Second condition, f of 0, a into f of 0 must be greater than 0. And third condition, minus b by 2a must be greater than 0. ये तीनों कंडीशन को simultaneously satisfy करेगा, then 100% we can say both the like equation having 4 रियल रूट्स. अगर एक t की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग x की मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, राइट. तो एक t की वैल्यू के लिए मुझे दो x की वैल्यूज मिलेगी, पॉजिटिव t पॉजिटिव के लिए. t अगर नेगेटिव होगा तो 100% विल गेट इमेजिनरी रूट्स, राइट. तो मुझे क्योंकि चारों रियल रूट्स चाहिए तो 100% यही कुछ कंडीशन आनी चाहिए अपने पास. सो d ग्रेटर देन 0 मीन्स b square minus 4ac must be greater than equal to 0, first one. Second, f0 means a greater than 0. Third one, minus b by 2a, right, minus 1 by 2 into 2 must be greater than 0. So 1 by 4 greater than 0 is okay with this, right. a greater than 0 और a less than 1 by 8. तो ये तीनों को अगर मैं मर्ज करूं, I can say 0 to 1 by 8. How many of you got this answer? Write down yes in chat. Jewel, Chinmay, Subham, Snikta, Kita, Prateen, आयुष, सुयस, अरे वाह काफ़ी लोग हैं. लाइक क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूँ. How many of you are not getting this answer or not understanding this? Please write down no in the chat. We'll discuss again. Anyone? Anyone? No. तो 100%, या हितांश, सर हितांश लास्ट स्टेप रिपीट कीजिए ना. कौन सा बेटा लास्ट स्टेप? थर्ड स्टेप, थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन ये लिखा हुआ है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंडीशन पढ़ा था ना, अगर यस सर. था. व्हाट वाज द कंडीशन?
सर मुझे ये ग्रीन वाली जो लास्ट कंडीशन है 1/2.2 वो समझ नहीं आ रही। ये बेटा यहाँ से लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है, ये है थर्ड कंडीशन, -b/2a ग्रेटर देन 0। सर वो मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड दैट। पardon, एक बार फिर से बोलो। सर आई अंडरस्टूड दैट थर्ड कंडीशन, आई वाज not understanding the green part, third one. The same thing, the value of b is -1, a is 2, so if you are putting value of b and a, you are getting this only. Okay sir, okay. और किसी को, anyone want to ask? वत्सल, विनीत, वैष्णवी, तनिष, सुयस, ओके एवरीवन? Yes, sir. चलो, मैं ये 100% ये कर रहा हूँ आप लोगों की बातों पर। अगर नई आवाज़ आ रही है तो मैं कर रहा हूँ कि इट्स ओके, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। गो फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनफैक्ट ओनली सेकंड। आंसर ऑफ सेकंड, आयुष एक बार चेक कर लो बेटा। सुयस वेरी गुड, प्रितेन चेक इट, चेक दिस आउट अगेन, स्निग्धा वेरी गुड। शुभम वेरी गुड, अमन, अनुष्का, अर्णव, अस्का, अस्मी, चेक आंसर, चिन्मय, धर्मिल, ध्रुव, हार्दिक, see what we required for the second one, all the roots are imaginary, right? The same, almost the same thing we have to do, but obviously all the roots are imaginary for this. Right, so this is the basic condition, right? All the roots are imaginary. इमेजनरी होने का मतलब वी आर नॉट गेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे को नहीं मिलनी चाहिए, एक्स की वैल्यू रियल नहीं मिलने का साफ मतलब है टी मस्ट बी नेगेटिव। सो दोनों टी को नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज वी नीड जितने भी हैं सब के सब रूट्स नेगेटिव चले जाएं, राइट? इमेजनरी अपने आप वो काम कर जाएगा, राइट? ये ग्राफ हमारे पास है, तो ये ग्राफ में both the situation you'll
ठीक, तो both the roots are at negative position, तो नेगेटिव होने का साफ मतलब है कि गेटिंग t इज नेगेटिव। t अगर नेगेटिव है तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो इमेजिनरी हो जाएगी, राइट। तो x की इमेजिनरी वैल्यूज हो जाने हैं ऑब्वियसली। तो ये मेरे लिए परफेक्ट कंडीशन है वेयर आई कैन से कि ओके वी आर गेटिंग नो रियल रूट्स। इसके लिए कंडीशन क्या क्या होता है? फर्स्ट, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, a ऑफ f0 a इज 2, ये 0 है क्योंकि, राइट। And third, minus b by 2a, right? We're getting minus b by 2a, right? यहाँ जो minus b by 2a मेरे पास आ रहा है, this must be right, this must be less than 0। ये तीन कंडीशन मेरे पास एक साथ में वर्क होनी चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशन तो मैं पहले ही निकाल चुका, तो थर्ड कंडीशन केवल यहाँ पर है, मतलब 1/4 लेस देन 0, राइट। 1/4 लेस देन 0। अब 1/4 लेस देन 0 अगर हो जाए तो, लेकिन वी नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, सो फॉर दिस नो सॉल्यूशन, no values। How many of you got this no values? Write down yes in chat. If you are not getting, write down no in chat। Sir, Yes beta, so I made two cases in this. why? So एक केस नो इंटरसेक्शन का भी तो बना सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला why। क्वेश्चन तूने नहीं सुना शायद, मैंने पूछा why। जब लास्ट क्लास में हम लोग इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि अगर के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स होगा तो आपको तीन केसेस लेने हैं। तो अगेन वाई, अगेन वी आर गोइंग फॉर दैट बेसिक थिंग। ये तो हम लोगों ने बात करके रखी थी ना, पूरे कंडीशन मैंने बताए थे ना, किसी के लिए भी, राइट। ये अगर मेरे पास गिवन है, राइट, के वन के टू लाइन बिटवीन द रूट्स, ये सब के लिए हम लोगों ने कंडीशन लिख के रखे थे। कंडीशन इसलिए लिख के रखे थे कि ये सिचुएशन आते ही वी हैव नॉट टू थिंक, हमें सीधा का सीधा वो जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था उसको हमें अप्लाई करना है, बस हमें रिलेट करने हैं पूरी कहानी को। एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, एग्जैक्टली टू रियल रूट। इसमें और भी क्वेश्चन दूंगा, इसलिए ध्यान से टेक योर टाइम, आप सोचें थर्ड क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। Yes, Overdone, your response is not coming. Vatsal, your response is not coming. स्कूल के बच्चे जैसा सब करते हो यार, लोग बड़े हो गए, थोड़ा बड़ा जैसा ये करो। उदय,
सुयश, प्रणया, अनुष्का, शुभम, स्निग्धा, Pasmi, very good. Snigdha, Jebel, very good. Everyone write down answer, then only I'll get to know. If you're not getting anything, you have to write it down. Rakshit, very good. Pritain, Aman, exactly two real roots, right? Exactly two real roots. यही कंडीशन है पूरी की पूरी, राइट? ये कंडीशन थी जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, राइट? Exactly two real roots for this, right? Vaishnavi, very good. राइट? मुझे क्या चाहिए, राइट? टी, अगर एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी मेरे पास है, तो टी की वैल्यू अगर 4 हो गई तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जो मेरे पास होगी +-2। थिंक एक्स की वैल्यू अगर -2 हो गई तब क्या होगा? टी की वैल्यू मेरे पास 4 गिवन है तो एक्स की वैल्यू +-2 आ जाएगी। अगर टी की वैल्यू -4 गिवन है तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। तो मेरे ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉटिंग होनी चाहिए कि दोनों कंडीशन को एक साथ में सेटिस्फाई कर जाए, राइट? एक साथ में सेटिस्फाई कर जाए तो सबसे अच्छा तरीका है एक टी पॉजिटिव हो और दूसरा टी नेगेटिव हो। तो बेस्ट एग्जांपल इज, राइट, दिस वन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एंड इसके लिए अगर याद हो आपको, हम लोगों ने बात की थी, इफ एनी के लाइन बिटवीन द रूट्स की बात हो रही है तो f0 की जो वैल्यू है वो <0 होनी चाहिए। f0 का मतलब a <0, राइट? a <0, जैसे a की वैल्यू <0 होगी, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रूट होगा, यहीं पर अपने आप जो दूसरे कंडीशन है अपने आप सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिसमें कंडीशन d>0 होता है। d>0 हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ था। d>0 से जो मेरे पास आया था a <1/8 आया था, राइट? a <1/8 आया और a <0 आया, दोनों को कंबाइन करके आप देखें तो एक बार 1/8 से लेस की बात हो रही है और एक बार बात हो रही है <0 से। एक कंडीशन ये आया है मेरे पास एंड दूसरा कंडीशन मेरे पास ये आया है, राइट? दोनों का कॉमन रूट्स कौन सा हमारे पास होना चाहिए? a must be <0. How many of you are getting this? Write down yes in chat, please. Very good, everyone. Very good, very good. नहीं बेटा,
इमेजिनरी चीजें रियल में नहीं हो सकती, राइट। इमेजिनरी जितनी भी है ना वो रियल में नहीं हो सकती, राइट। तो दोनों के लिए हम लोगों को ये रखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग। उदय, तूने 0 क्यों लिखा बेटा आंसर? Exactly, yeah, this is a beautiful question on this. Exactly three solution. Exactly three solution. तो इसके बारे में सोच के बताएं तो क्या होना चाहिए? Exactly three solution, right? कैसा ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए कि एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन आ जाए आपके पास? ध्यान से देखें। एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा हो, इंपॉर्टेंट ये। If we are able to draw the graph, 100% will be able to get the answer. एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तीन सॉल्यूशन का मतलब ये होगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखना, तीन सॉल्यूशन जब भी हो रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास जो भी गिवन है इसमें एक जो रूट है वो वहां से पास हो जो रिपीटेड है, एक रूट वहां से पास हो रही हो जो रिपीटेड रूट्स है, और दूसरी रूट अगर मुझे चाहिए तो एक रूट हमारे मतलब जो बची हुई रूट है वो मेरे पास एक पॉजिटिव में होनी चाहिए और एग्जैक्टली एक जीरो से जानी चाहिए। इससे फायदा क्या हुआ कि जहां पर ये रिपीटेड रूट्स वाली बात हो रही है, मतलब इसकी बात जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स स्क्वायर जीरो है तो जीरो जीरो ही हमारे पास वैल्यूज बन रही होगी, और ये पॉजिटिव के लिए दो वैल्यूज बन रहे होंगे, तो यहाँ के लिए दो वैल्यूज और यहाँ के लिए वन सॉल्यूशन, टोटल मिला के थ्री सॉल्यूशंस। इज इट ओके? Yes, वेरी sir. गुड उदय, वेरी गुड रक्षित, वेरी गुड अमन, वेरी गुड अनुष्का, काफी लोगों ने अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। मानस, प्रणय, प्रीतेन, राइट। स्निग्धा तूने भी लिखा था ना, शायद पहले लिखा था। वेरी गुड। अस्मी, तेरा आंसर नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये कहानी रही कि एक छोटे से क्वेश्चन में ध्यान दो कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट। कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एंड स्टिल आई हैव द थिंग कि अगर यही क्वेश्चन को और मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, 4 की जगह 5, 6, 7, 8, बहुत सारे धीरे 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 आप चाहो तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो सकते हो, राइट। एंड सब कमाल है आपके ग्राफ का, अगर एक बार वो चीज़ें दिखने लग गई कि कैसे ग्राफ आपका जनरेट हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके लिए बहुत आसान कर जाएगा क्वेश्चन करना, राइट। सी, दिस इज द फोर्थ वन। फिफ्थ, right, all the roots are real, right? Okay, नेक्स्ट, इसमें और एक क्वेश्चन दे दूं।
वन रियल एंड टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी सॉल्यूशन। ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए? ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए? यू कैन राइट डाउन इन चैट। टी का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? मीन यहां पर आप टी का ग्राफ बना रहे हो, टी का ग्राफ कैसा होना चाहिए? डन। राइट, एक जीरो और एक नेगेटिव पे, ये नेगेटिव वाला इमेजिनरी रूट देगा और ये केवल एक सॉल्यूशन दे रहा होगा। राइट, 6 टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा होना चाहिए, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, मतलब दो रूट एक जैसा, दो रूट एक जैसा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। राइट, इस सिचुएशन में क्या ग्राफ होना चाहिए? अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये ग्राफ कैसा होगा? हाँ बेटा, ये वाली जो है, लेफ्ट वाली जो है ना, ये इमेजिनरी रूट्स दे रही है। राइट, इमेजिनरी रूट्स दे रही है एंड दोनों के दोनों रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट भी हो गए। ये वाली जीरो दे रही है, जो दोनों रूट्स 0 0 1 मतलब एक ही हो गए। तो एक रूट तो जीरो मिल गया और दो रूट्स कह लो जीरो मिल गया, जिसका एक सॉल्यूशन मैं बोल सकता हूँ, एक सॉल्यूशन मिल गया। और यहाँ दो सॉल्यूशन जो मिले वो इमेजिनरी वाले मिल गए। राइट, टू रूट्स आर इक्वल एंड टू रूट्स इक्वल, मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा ऐसा। मतलब रूट्स आ गया आपके पास 2 2 -2 -2। बहुत बड़ा हिंट है ये। वेरी गुड सुयस, वेरी गुड सुयस, बहुत अच्छे बेटा। नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं था। स्ट्रेट लाइन होने के लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को जीरो हो जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आपके पास जो भी आ रहा है यहाँ पे, ये वो तो जीरो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाएगा? इक्वेशन तो आपका ऐसे ही है। वेरी गुड। इस ग्राफ में दो चीजें होंगी। वेरी गुड, ये ख्याल करते हुए ग्राफ मेरा ऐसा बनना चाहिए कुछ।
कुछ ऐसा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये बनने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास पॉजिटिव में ये कट कर रहा है एंड इसका डी जीरो है, एंड रूट जहां पर ये कट कर रहा है ये पॉजिटिव में कर रहा है, मतलब माइनस बी बाई टू ए, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, राइट। तो माइनस बी बाई टू ए तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है ही अपने पास, राइट। अगर डी इक्वल टू जीरो हमने कर दिया तो मेरा काम बन जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि मान लो ये वैल्यू जो है टी की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, राइट, तो रिपीटेड रूट्स है तो ये 4,4 मैं बोलूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू दो बार आ गई, मतलब टू माइनस टू आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए। इज इट ओके? Yes, sir. राइट। सो बहुत सारी वेराइटी हो सकती है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, केवल ध्यान से समझना एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग एंड वहां से आप आराम से वर्किंग कर सकते हो, राइट। सो वंस अगेन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन, x to the power 4 plus 2 ax cube plus x square plus 2ax plus 1 is equal to 0 has, first question, all real roots. Exactly to positive distinct root. Positive distinct root. Exactly to negative distinct roots, right? No real roots. बस इतना ही रखता हूँ, ये इसी में काफी हो जाएंगे, वन बाई वन। ऑल रियल रूट्स, क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं, पहले केवल ग्राफ के बाद, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बनाए, ये क्वाड्रेटिक अभी नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद वो क्वाड्रेटिक के क्या क्या ग्राफ पॉसिबल हैं वो सोच सकते हैं आप, राइट, टी के रेंज के हिसाब से। टेक योर टाइम, यू हैव 3 मिनट फॉर दिस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड स्मिता। सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको क्वाड्रेटिक फ्रेम करना। क्वाड्रेटिक फ्रेम करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मैंने लिया, प्लस 2ax प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. This we can write x plus 1/x the whole square minus 2, right? Now x plus 1/x is equal to t, right? X plus 1/x is equal to t. We know that where this will be t greater than equal to 2 or t less than equal to minus 2, right? अब मेरे पास कहानी बन गई टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ लोग स्टक हुए हों तो अब इस पर वर्किंग आपकी है, टी एक्सिस पर पूरे के पूरे वर्किंग होनी है, राइट? अब इस पर वर्किंग शुरू करें। योर टाइम स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन सबके अटेम्प्ट हो गए हैं और पहले फर्स्ट देख लेते हैं। ऑल द रूट्स आर रियल। रियल रूट्स के लिए क्या होगा वो देखते हैं। अच्छी बात यह है कि ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है जिसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से ऑल द रूट्स आर रियल की बात हो सकती है। कैसे? ये एक्सिस जो है इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो 100% कुछ ऐसा ही ग्राफ हो रहा होगा। -1 पर ये जा रहा है, राइट? -1 पर जा रहा है, राइट? कंडीशन क्या होता है रियल रूट्स के लिए, राइट? -1। ये दोनों पॉइंट मेरे पास -2 एंड 2 है, राइट? अगर इसके रियल रूट्स होने तो एक कंडीशन तो ऐसा हो गया, ऐसा ग्राफ फ्रेम हो जाए, या हो सकता है यही ग्राफ जो हो वो कुछ ऐसा बन जाए, राइट? या हो सकता है यही ग्राफ जो हो कुछ ऐसा बन जाए, राइट? ये ग्राफ पॉसिबिलिटी, राइट? ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है, राइट? अगर ऐसा ग्राफ मेरे पास आ रहा है तो ऑल द रूट्स आर रियल की बात हो रही होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये मूव करते करते टच भी कर रहा हो तब भी चलेगा, राइट? या इंटरसेक्ट कर रहा हो तब भी चलेगा। मतलब या तो दोनों रूट्स जो हैं हमारे वो 2 के आगे होने चाहिए, राइट? दोनों रूट्स जो हमारे हैं या तो वो 2 के आगे होने चाहिए, राइट? या दोनों रूट्स हमारे जो हैं वो -2 के पीछे होने चाहिए, या -2 और 2 के, एक 2 के आगे और एक -2 के पीछे होना चाहिए। ये तीन हमारे पास केसेस हो सकते हैं। ये तीन केसेस के लिए हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट? इन ऑल द केसेस फॉर रियल रूट्स, इन ऑल द केसेस सबसे पहली बात जो है दिस इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? ओके, फॉर दिस वन अगर मैं इसे 1 नाम दे रहा हूं, राइट? d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी मैंने ले ही लिया है, राइट? 2 a इंटू f2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन ये भी पॉसिबल है। जल्दी से लिखो तो क्या क्या होंगे। And third condition, -b/2a
must be greater than 2 फर्स्ट के, इसे मैं नाम देता हूं सेकंड, राइट। सेकंड के लिए व्हाट वी कैन से, ग्रीन से ही लिखता हूं, d greater than equal to 0, second f of minus 2 greater than 0, third minus b by 2a less than minus 2, right? Third, f of 2 greater than 0, ये थर्ड बोल रहा हूं, f of minus 2 greater than 0, So less than 0 ना? हाँ बेटा, दोनों ही लेस देन 0 पे, राइट। ये दोनों हमारे पास कंडीशन केवल इतने आ जाएंगे तो अपने आप में डी की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि लेस देन 0 का मतलब ये है कि डी वहां पर अपने आप सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एंड ये तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन या यूनियन, क्या निकालना है आपको? ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है या यूनियन निकालना है आपको? ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड है या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है? इंटरसेक्शन या यूनियन? राइट डाउन इन चैट, इंटरसेक्शन और यूनियन। एक, ओके, अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। क्या क्या प्रॉब्लम बेटा? सर मुझे नहीं समझा, हमने t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू -2 क्यों लिया? t की वैल्यू, यस सर। ये आपने क्या सपोज किया था? व्हाट वाज t? x plus 1 by x. t is equal to x plus 1 by x, right? Go with the basic. What is the basic? x square minus xt plus 1 is equal to 0. Is it okay? मैंने rewrite कर लिया. Yes sir. Now, for this we know that d must be greater than equal to 0 for real values of x. Okay sir, समझा. t square minus 4ac greater than equal to 0. So t minus 2 t plus 2 greater than equal to 0, right? So that's the Okay. reason we are saying कि maybe greater than 2 or less than -2, either this side or this side. That's the reason we have taken t as this. Okay, every Thank time you sir. from this only. Okay, अभी इंटरसेक्शन यूनियन चल रहा है भाई, तो ये जरा सा लड़ाई अधिक बढ़ गई है यहाँ तो इंटरसेक्शन यूनियन की। ओके, यहाँ पर अस्मी का इंटरसेक्शन नमन, केविन, सुयस, जिविल, सिद्धि यूनियन, हितांश, सागर, स्निग्धा, अस्का इंटरसेक्शन, अनुष्का, अमन, अमोघ, आदित्य, चिन्मय यूनियन, मानस यूनियन। होप एवरीवन हैज टू राइट इट डाउन, या जो आपको समझ में आ रहा है यू मस्ट राइट इट डाउन। एक एक बार हर एक को बोलना इज नॉट गुड, इतना तो आप लोग भी समझते हो यार। विनीत, आयुष यूनियन, वेरी गुड। प्रीतेश, प्रीतेन तेरा नहीं आया अभी तक। ध्रुव यूनियन, अर्णव यूनियन,
प्रितेन यूनियन, सनीन यूनियन, प्रणया यूनियन, वत्सल आपका नहीं आया बेटा अभी तक, रक्षित यूनियन, पीयूष, यूनियन यूनियन यूनियन। ओके, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। एंड ये है वत्सल, आई हैव नो आइडिया, नो आइडिया। चलो वोडाफोन लेके हम लोग काम कर लेंगे बेटा, क्या दिक्कत है। देखो क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट केस में 2 के आगे ये कट करे तो दिस इज आवर आंसर, या फिर सेकंड केस में ये -2 के पीछे कट करे तो ये आंसर होगा, या थर्ड केस में आई एम सेइंग कि -2 और 2 के आगे पीछे कट कर रहा है तब भी ये आंसर होगा। मतलब बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली यूनियन है या इंटरसेक्शन है। या तो फर्स्ट केस हो तब भी सही है मेरा आंसर, सेकंड केस में आ रहा हो तब भी सही है मेरा आंसर, थर्ड केस में आ रहा हो तब भी सही आंसर। मींस वी आर सेइंग दिस और दिस और दिस और दिस। और के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन। यूनियन। लेकिन आपस में जब यहाँ पर केसेस हो रहे हो ना, ये इंटरसेक्शन होता है, राइट? कि d ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, f2 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, और ये तीनों एक साथ होंगे तभी मेरे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इज इट ओके? इज इट ओके Yes, sir. सभी को ना? तो अब जल्दी से सेकंड केस के लिए इस पे जाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स।
Done. Exactly two real and distinct roots, right? -2 and 2 पहले से मेरे पास है ही, हाँ? राइट। टी अगर पॉजिटिव वैल्यूज देता है यूल गेट समथिंग टी, ऐसा मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, एक 2 के आगे कट कर रहा है और एक -2 से 2 के बीच में कट कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये रहा कि अगर 2 के आगे कट कर रहा है तो जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिल रही है इसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की 2 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जो सेकंड वाली यहाँ पर कट कर रही है इसके लिए जो वैल्यूज मिलेगी वो दोनों इमेजिनरी वैल्यूज मिलेंगे, राइट। तो 2 के आगे जो पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये मेरा परफेक्ट केस है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मेरे पास रहेंगे जो पॉजिटिव वाले हैं एंड 2 इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल होते हैं वो लिखें। फर्स्ट, डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफ ऑफ -2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड, ए इंटू एफ ऑफ -2, बट ए तो अपना अच्छा सा है, f2 लेस देन 0, -2 पर ग्रेटर देन 0 है, f2 पर लेस देन 0 है, राइट। अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो -b/2a की वैल्यू जो है वो -2 से ऊपर है। जीरो क्यों ले रहे हो? 2 की बात चलेगी ना। F2 लेस देन 0 केवल हमने लिया तो वो गलत भी हो सकता है कि F2 लेस देन 0 इस केस में भी है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। ओके ना, गो फॉर थर्ड एंड फोर्थ, डू इट फास्ट थोड़ा सा। अब ना दोनों को एक साथ में लिखें, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, आराम से सोचते हुए लिखें कि क्या होना चाहिए। सर सेकंड वाले में नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो तो निकाल लेंगे बेटा। कि अगर हम -b/2 ग्रेटर देन -2 लेते हैं तो a ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लो। ये दोनों जल्दी से देखो, थर्ड एंड फोर्थ, exactly two negative distinct roots, no real roots. Done.
Done, sir. बोथ नो रियल रूट्स भी आ गए. नो रियल Yes, रूट्स sir. पर थोड़ा सा ख्याल रखना. अच्छा क्वेश्चन है ना, कंडीशन को ध्यान से. एग्जैक्टली टू नेगेटिव के लिए तो ऑब्वियसली ये जो केस हम लोग यहाँ पर लिया था हमने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया. अगर एग्जैक्टली टू रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इसी क्वेश्चन में अगर चाहूँ तो इसको ऐसा सही है Yes, sir. हाँ सर. ना. एक -2 के नीचे कट करना चाहिए और दूसरा -2 से 2 के बीच में कट करना चाहिए. लेकिन मजेदार क्वेश्चन इसमें होता जब नो रियल रूट्स की बात हो. क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, यही मानते हुए मैं आगे ले रहा हूँ. क्या क्या कंडीशन होंगे नो रियल रूट्स. पहली बात तो नो रियल रूट्स का सबसे अच्छा ग्राफ तो यही होगा कि ये एक्स एक्सिस को कट ही ना कर रहा हो. राइट, कहीं पर भी हो रहा हो ये चलेगा. सेकंड, यही चीज अगर यहां पर हो तब भी पॉसिबिलिटी है. राइट, -2 से 2 के बीच में कट कर रहा हो तब भी हो सकता है. ये वाला दिस और दिस, तो ये वाले के लिए जाएगा t <0। राइट, काफी है. यहां के लिए जाएगा d < 0, f of 2 < 0, f of -2 < 0, -b/2 a lies between -2 to +2. ये चारों कंडीशन, दिस और दिस. राइट, यहाँ पर d > 0 भी हो सकता है. तो d का कंडीशन ही खत्म हो गया. एक बार आप d > 0 बोल रहे हो, एक बार d < 0 बोल रहे हो, तो d तो हो ही गया. d में कोई दिक्कत नहीं है. Is it okay, everyone? Yes, sir. ओके, सो ये कंडीशन रहे जब आपको लोकेशन ऑफ रूट्स इसे बोला जाता है तब के लिए ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर कॉमन रूट्स. कॉमन रूट्स, अब कॉमन रूट्स में बात क्या होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक मैंने कहा, a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0. राइट, ये दो. अब इनके कॉमन रूट्स की बात करनी है कि इनके कॉमन रूट्स हैं, तो इसमें दो बातें होती हैं. राइट, फर्स्ट केस, both the roots are common. Second case, one root is common. Right, फर्स्ट केस बोथ द रूट्स आर कॉमन. अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो जो मेरे पास रिटर्न है x - अल्फा x - बीटा = 0 होगा फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन होगा a2 x - अल्फा x - बीटा = 0. राइट, दोनों रूट सेम होने चाहिए तो दोनों अल्फा बीटा ही हो रहा होगा. अगर ऐसा केस है तब के लिए कंडीशन होना चाहिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. This is when both the roots are common. Please note down. First condition, both the roots are common.
Okay, done. Yes, sir, done. Right? So this is for both the roots are common. वन रूट कॉमन रहे तब के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर एक ही रूट कॉमन है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है दैट्स a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके रूट्स आ गए a1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इसके रूट्स आ जाएंगे a2 x माइनस अल्फा x माइनस गामा, राइट। इसका रूट अल्फा दोनों के कॉमन रूट हैं एंड इसका जो अनकॉमन रूट है एक बीटा है और एक गामा है, राइट। सॉल्व करने का यूजुअल तरीका आप क्या रखोगे इस पर ध्यान देना। अगर यूजुअल जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है एक्स स्क्वायर b1 बाई a1 x प्लस c1 बाई a1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस b2 बाई a2 x प्लस c2 बाई a2 इज इक्वल टू 0, राइट। एक रूट दोनों का कॉमन है, मान लेते हैं हमने दोनों में अल्फा रखा तो ये अल्फा के साथ में सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने अल्फा से, राइट। दोनों को माइनस कर देता हूं, अल्फा कॉमन, b1 बाई a1 b2 बाई a2 अल्फा इज इक्वल टू c2 बाई a2 माइनस c1 बाई a1 और अल्फा इज इक्वल्स टू a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2। इज इट ओके? वन रूट कॉमन के लिए अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। डन, Yes, sir, done. राइट। या फिर इसका एक अच्छा Sir, तरीका एक बता रहा हूं, अभी देख लो, इसका एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों को सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व होता है ये देख लो एक बार। ये वाले को लिखा मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन क्रैमर्स रूल लगा रहा हूँ ना, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, जब इसके लिए लिख रहा हूँ तो ये रिवर्स जाएगा, पहले ऊपर वाला जाएगा, मतलब a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना b1 a2, राइट। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी इन दोनों से और एक बार x की वैल्यू इन दोनों से निकल आएगी। सो वी कैन राइट द कंडीशन इज a2 c1 माइनस a1 c2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। कैसे हुआ है इसको अगर आप देखना चाहे तो यहाँ दिखाऊंगा मैं। पहले मैंने इसके लिए लिया एक्स स्क्वायर की, तो इसको भूल गया, राइट, इसे हटा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, राइट, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यही लिखा हुआ नीचे, राइट। सेकंड केस में जब गया, राइट, तो मैंने इसको रिमूव किया, इस बार मैं नीचे से ऊपर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब कोफिशिएंट्स को, राइट। थर्ड केस में मैं गया तो फिर मैंने इसको भूल गया, मैं इसके जगह पर 1 कांस्टेंट लगा दिया एंड फिर से मैं गया, वही रेशियो जो हमारे पास था इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई किया, वही लिखा हुआ है।
सो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। इज इट ओके? Yes, sir. राइट, ये याद रखना। आप ऊपर चाहो तो वो भी वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड वाला वही आया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड में दूसरा आएगा। बट कंडीशन आपका जो है वो लिखा हुआ जो नीचे है वो आपका कंडीशन है, ये है कंडीशन फॉर। बट मैंने कहा कि प्रैक्टिकल यूज के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है, दोनों तरफ से अल्फा स्क्वायर या जो भी है उसे माइनस करके हटा देना है। अपने आप जो x की एक जो भी कॉमन रूट्स है उसकी वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाएगी। ओके ओके कॉमन रूट्स पे वेरी गुड। पहले का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड। दो आंसर आने चाहिए इसमें, दोनों चेक कर लो।
Very good. Go for third. Very good, everyone. Go for third. Let's start. मैं start करूं. 1 minute, please.
Okay, let's start. X square plus px plus q is equal to 0. X square plus p dash x plus q dash is equal to 0. राइट, ये दोनों कॉमन रूट्स के लिए कंडीशन एक्स स्क्वायर अपॉन पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पी डैश माइनस पी। आ गई, पहले x की वैल्यू आ गई q माइनस क्यू डैश अपॉन पी डैश माइनस पी। सेकेंड में ये दोनों से x की वैल्यू आ गई पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट सेम आंसर? राइट डाउन यस इन चैट। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के अलावा कुछ भी खास नहीं करना पड़ा आपको। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सेकेंड वन, कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ m, राइट। देखो, क्वेश्चन करते वक्त आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको। एक तो फॉर्मूला अभी जो हमने किया था वो आ गया, या ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2m/3x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4m x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। दोनों को माइनस कर लिया, x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस प्लस माइनस 4m माइनस 2m/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3, 12 माइनस 2 10m/3x इज इक्वल टू 10/3, x is equal to 1/m, राइट। x is equal to 1/m मस्ट सेटिस्फाई दोनों जो इक्वेशन गिवन है, दोनों में कहीं भी रख दूं। चलो इसी में रख देता हूं। वन बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, कुछ ऐसा। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। फॉर्मूला भी है, आप चाहे तो फॉर्मूला में भी आप पुट करो, फॉर्मूला से निकालो वगैरह वगैरह तो है ही, बट मैंने एक ये भी तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले यूनिटी करके दोनों को माइनस करके खत्म कर लो एंड देन वहां से सॉल्व कर लो, आसानी से ये भी सॉल्व हो जाता है, राइट। गो फॉर द थर्ड वन। राइट, थर्ड में obviously again everyone is getting good, right। फिर फंडामेंटली हम लोग उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से ले लूँ, दोनों इक्वेशन माइनस x इज इक्वल टू a, ये आ गया। b इज नॉट इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c हो जाएगा तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, राइट, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो एक रूट कॉमन की बात करनी थी। तो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a मैंने रख दिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। एक तो ये आ गया मेरे पास, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से देखें, क्योंकि एक रूट इसका ए आ चुका है, राइट, दिस ए इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात अगर मैं करूं तो इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू AC होगी
अल्फा इंटू गामा की वैल्यू ए बी होगी, क्योंकि एक रूट ए है मेरा, तो सेकंड रूट इसमें जो होगा वो सी होगा जो बीटा होगा, और गामा की जो वैल्यू आ रही होगी वो बी हो रही होगी, राइट। तो बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ द अदर रूट्स जो हैं, तो एक्स स्क्वायर बी एंड सी आर द रूट्स, राइट। बट ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो बी प्लस सी की वैल्यू माइनस ए हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। जो थर्ड इक्वेशन आपको नॉन कॉमन रूट से चाहिए था वो ये रहा। Want to see, you can go through this, hopefully 1 or 2 आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। ओके, ओके, Yes, sir. राइट। सो बहुत सारे इसके वैरायटी आपको आएंगे क्वेश्चन के लिए ना, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन दे दिया, राइट। ए बी सी आर रियल एंड दिस ए बी सी आर रियल, right? If this equation having common root, then find a is to b is to c. a b c का रेशियो क्या होगा? One common root. हाँ, बस दिया है कॉमन रूट ना, नहीं दिया 1 2 नहीं दिया इसने। हैव अ कॉमन रूट, ए बी सी रियल है, ये गिवन है।
ओके, लेट्स सी ये क्वेश्चन का पंच क्या है, ट्रिक क्या है। ये देखो, ये जो गिवन इक्वेशन है, राइट, ये गिवन इक्वेशन है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होने का मतलब हो गया कि अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, राइट। इसके रूट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। एंड क्योंकि इस इक्वेशन का ए बी सी रियल है, तो अगर उसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो 100% इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा ही होगा। मतलब ये एक रूट कॉमन बोलने के बाद भी इसके दोनों रूट्स कॉमन होंगे। मतलब a बाई 1 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 3, 1:2:3। यस नमन। सर आप एक और बार समझा सकते हो क्या? हाँ, समझा। जो गिवन इक्वेशन है इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आएगा। d लेस देन जीरो आने का साफ मतलब हो गया कि अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। इज इट ओके? यस सर। एंड कोई भी एक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू गिवन है जीरो, ए बी सी रियल नंबर अगर गिवन है तो इसका अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो 100% दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, यस सर। राइट। मतलब साफ है कि इसका एक रूट कॉमन बोलने के बाद भी इसके दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे, और दोनों रूट कॉमन होने का मतलब होता है कोफिशिएंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यस सर। Tanu, want to ask anything? Yeah, next. मैंने जो सीट दिए हुए थे ना उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दोगे उसमें, राइट। कितने लोगों का आज एग्जाम है? 10 o'clock, राइट डाउन यस। ओह ओह, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डू इट फास्ट।
ओके, फर्स्ट सेकंड को ऐड करो, थर्ड से माइनस करो। सर थर्ड वाली इक्वेशन में a प्लस बी एक्स है कि एक्स स्क्वायर है सर वो? एक्स है, ए प्लस बी एक्स। ये क्वेश्चन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।